for all the lovely smiles. Trust me, आपकी मुस्कुराहटें आपकी आंखों में भी मुझे दिखाई देती है। तो क्या हुआ अगर मास्क के अंदर आपकी मुस्कुराहट है, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपकी आंखों से बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। At first, please allow me to thank all our lovely friends from the media and press. आप सबके शुक्रगुजार हैं for your humble presence. Everyone seems to be happy and they all relate to us as their family member. So I'm very happy and I'm very proud and I hope everybody goes higher and higher. Thank you for that best wish. So contestants, you have the best wishes from UNI Entertainment. Are we ready? She's a civil engineer and by passion, she's a freelance model. Being an artist, she loves to paint and also loves making handmade, customized greeting cards. Let's give it up for Gauri Gultankar. Harshita Pujari, a 22-year-old engineering graduate, currently working in a firm as an HR. Loves to dance and is a firm believer. And number 3, Sanyukta Pavaskar, 20 years young freelance content writer who comes from the beautiful city of Dombivli, currently pursuing Bachelor's of Engineering from Dr. D.Y. Patil University's Roy. Ayal Rohira, contestant number 4, a 23-year-old from the city of Joy, Ulhasnagar, working for a political party and heading a news channel, passionate about her team, that is modeling and making dreams come true here today. To wear this sash. How excited are you, lovely girls? Let me tell you all, our lovely contestants are extremely talented, confident in your walk, and we can see the twinkle in your eyes. So good luck to you, lovely girls. You just have a couple of days more to go. हम नवी मुंबई में रहते हैं और नवी मुंबई हमारी जान है, तो हम चाहते हैं नवी मुंबई पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 रहे हमेशा। The youngest princess here with us. Hi, princess. What's your name? Raya. 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 Oh, you look lovely. Can I take you home with me? Okay. Okay, she's coming home with me. I'm so lucky. I'm going to take home a doll with me. Wow, thank you, Preeti, for giving me this gift, Armi. दोस्तों, मेरा नाम है सिमरन आहूजा। मेरी प्लीज एंड हमारे साथ हैं HFF फाउंडेशन से एंड ऑफ कोर्स जो फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए अपने जाने माने जाते हैं, न सिर्फ नवी मुंबई में बट ऑल अक्रॉस मुंबई, मिस्टर जफर पिरजादा जी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड। Good evening, people from the press. My name is Manmeet Singh. First of all, thank you so much for coming here and supporting us, supporting our pageant, supporting our show. We welcome you all, and you guys can ask us any questions if you feel like. First of all, let me give compliments to the organizers and all the contestants. Thank you. A very simple question: during this COVID period, what challenges you faced to organize this program? During the COVID period, what challenges you faced to organize this program? So thank you so much. कोविड में जैसे लास्ट हमारा सीजन 9 हुआ था 28 फरवरी 2020 को, और इमीडिएटली इसके 15 दिन के बाद लॉकडाउन हो गया।
हम लोगों ने लॉकडाउन के 2-3 महीने बाद सोचा जैसे हम रजिस्ट्रेशन चालू करते हैं एज रेगुलर फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, तो हम लोगों ने रेगुलरली चालू कर दिया, लेकिन देखा इस टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन हमें ज़्यादा एंट्रीज आई, नॉर्मली जितनी आनी चाहिए उससे ज़रूरत से ज़्यादा एंट्रीज आई कोविड टाइम पे। फिर वेट करते रहे कि कभी अनलॉक हो और कभी हम बाहर निकल सकें और हम आपस से हमारे एसोसिएट्स, हमारे स्पॉन्सर्स, पूरी यूएनआई फैमिली और मिस नवी मुंबई फैमिली को मिल सके हम लोग ठीक तरह और गाइडेंस के हिसाब से वापस से ये शो ऑर्गेनाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। करते रहे, दिसंबर हो गई, फिर दिसंबर में कॉल लिया हम लोगों ने, चलो ठीक है कोविड नॉर्म्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं और अनलॉकिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई, तो उस मुकाबले हम लोगों ने फिर सोचा कि क्यों ना शो पुट अप करें। और फिर सारे ऑर्गेनाइजर्स के साथ, स्पॉन्सर्स के साथ, पूरी जूरी जहाँ पे बैठी हुई है सबके साथ फिर एक मीटिंग करके हमने सोचा चलो ये शो आउट करते हैं। 26 जनवरी को हमने ऑडिशंस किए और हर स्पॉन्सर ने हमें सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर और हम लोग इवन 4 पॉइंट शेल्टर, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे साथ। लास्ट मोमेंट पे इन्होंने अप्रूवल्स लेके हमें ये शो के लिए हेल्प की है, राइट फ्रॉम ऑडिशंस टू ट्रेनिंग सेशंस टू द फाइनल वेन्यू, हर चीज़ इन्होंने स्पॉन्सर की है, सबसे बड़ा रोल इनका है हमारे लिए। तो इनके सपोर्ट की वजह से हम लोग ये आज ये शो ऑब्वियसली लॉकडाउन के बाद कर पाए हैं। This is Yasmin from Evoli Bata. My question is, can you give a glimpse of like pre-COVID, COVID and post-COVID for a fashion industry, as you are representing a fashion industry, UNI Entertainment and Miss Navi Mumbai. So representing such an industry, how can you just give a glimpse of pre-COVID and COVID and post-COVID? How was the industry during this era? Thank you so much. Very, very intelligent question. Actually unexpected because we are all still experiencing the period. I've been very, very fortunate to be associated with Miss Navi Mumbai for now almost 7 years, and it's been absolutely wondrous. Let me tell you all that before COVID, that is, we had no idea about what will really happen when we had our event on the 29th, the leap year last year, on the 29th of Feb. The difference is just this, that आज न सिर्फ भारत देश में but पूरी दुनिया में, you know, the fashion industry will be as the role models. We need them to really give them this wondrous platform to tell everyone about what is right, what is wrong. हम सबको पता है, but we were all in our doorstep, और हम सबका ड्यूटी बनता है to take all the information post-COVID times at their doorstep. And I think now onwards, that is from 2021, the responsibility is much, much more for the fashion enthusiasts to truly take this word forward. At the same time, earlier we spent a lot of money with designer collection, and now we'll also make sure, because we've learned lots in the year 2020, it's been very special, how to really make the most out of basic needs, basic necessities, and जो सबसे अहम बात है, that is humanity values, which is the essence of any beauty pageant. वैसे हम सब सिखाते थे, जैसे हरमीत जी, शैली जी, मनमीत जी अपने contestants को सिखाते थे basic humanity values. But 2020 has automatically taught us those values, and I think 2021 is going to be extremely special because automatically there is a lot of humbleness, there is a lot of love and warmth, and at the same time there's a lot of concern for human care, which will really change completely. And that is why the fashion industry is here to, of course, go to everyone and give that beautiful message of believing in simplicity and thinking really high in life. So thank you for this. जितने भी आपके इस बार के कंटेस्टेंट हैं जो 16 आपने सेलेक्ट किया है, उनका अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा तो उसमें मोस्टली इंजीनियरिंग फील्ड से हैं। सर हमारे साथ ना हर बार ऐसा होता है, एक लॉट आता है सीए का, एक आ जाता है डेंटिस्ट का, इस बार सारे इंजीनियर हैं। लास्ट टाइम मैंने देखा था उसमें मेडिकल डॉक्टर्स ज़्यादा लोग थे। क्या वजह है कि अगर कोई सिलेक्शन होता है तो मल्टीपल एक ही बैकग्राउंड से, एक ही एजुकेशनल बैकग्राउंड से लोग रहते हैं, इसके पीछे क्या? सर जब हम लोग ऑडिशंस करते हैं तो हम लोग उनका क्वालिफिकेशन नहीं देखते वो कौन से हिस्से हैं, हम देखते हैं कि कंटेस्टेंट कॉन्फिडेंट है, रिप्रेजेंट कर सकता है नवी मुंबई को, और उनको सेलेक्ट करते हैं। तो हम लोग कभी भी ये नहीं देखते कि वो इंजीनियरिंग से है या डेंटिस्ट है या डॉक्टर है या सीए है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिस टाइम कोरोना था, ये पेंडेमिक एरा था, तो बहुत सारे ऑनलाइन पेजेंट्स भी हुए हैं, जो न्यू ट्रेंड था, न्यू नॉर्मल भी माना गया था। तो ऐसा कभी ख्याल मिस नवी मुंबई और यूएनआई एंटरटेनमेंट को आया कि इस साल उस टाइम पे कि हम ऑनलाइन जाए या मिस नवी मुंबई को ऑनलाइन पेजेंट बना दे, ऐसा कभी ख्याल आपको आया था?
एक्चुअली मैम इशू ये है कि ऑनलाइन तो हम कर लें, लेकिन जिस चीज़ के लिए मिस नवी मुंबई जाना जाता है, ग्रूमिंग का वॉक वगैरह की करनी थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है और चैलेंजेस तो आते ही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारा 10th ईयर है तो हम नहीं चाहते थे कि हम वो फिजिकल प्रेजेंस ना हो, और ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है और थैंकफुली कोरोना काफ़ी कम भी हो गया था पिछले दिनों में, तो क्योंकि लॉकडाउन खुला और हमें चांस मिल गया वापस स्टेज पर आने का, तो हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। पर हाँ, अगर बहुत ऐसा कुछ होता तो हम ज़रूर करते, बट मैम मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊँ कि चैलेंजेस तो रहते हैं और रहते हैं, क्योंकि अब मैं उन्हें बोलने तो फिर भी सिखा सकती हूँ, बट जब चलने की बात आती है या ग्रूमिंग की बात आती है और टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ ऑन स्टेज, वो एक डिफिकल्ट सिनेरियो बन सकता है। तो दोस्तों, यादों का सफर के अपने पिछले अलग अलग एपिसोड्स में मैं आपके साथ कई सितारों के साथ अपनी मुलाकातों के यादगार लम्हे शेयर कर चुका हूं, जिसे हजारों दर्शकों ने देखा और पसंद किया है, और हमें उनके उत्साहवर्धक कमेंट्स मिलते जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आगे भी अपने इस UCMB चैनल पर मैं फिल्म और टीवी जगत की और भी कई बड़ी हस्तियों से अपनी मुलाकातों के रोचक संस्मरण यादों का सफ़र इस सीरीज़ के अंतर्गत प्रस्तुत करता रहूँगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे कलेक्शंस के फ़ोटो, वीडियो आदि से भरपूर इस सीरीज़ को आप अवश्य पसंद करते रहेंगे। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।